محرک چینل کے ناظرین کی سائنس میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کو مد نظر رکھ کر ہم آپ کے لیے لائے ہیں دماغ کے بارے میں سائنسی حقیقتیں، کیونکہ ہمارا دماغ ہر دن ہزاروں فیصلے کرتا ہے، لاکھوں خیالات سوچتا ہے اور ہر لمحہ ہمارے رویے کو تشکیل دیتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اسے سمجھنے کی کبھی سنجیدہ کوشش ہی نہیں کرتے۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ دماغ صرف معلومات کا ذخیرہ نہیں بلکہ ایک زندہ اور بدلتی ہوئی لیبارٹری ہے۔ جب آپ اس کے کچھ پوشیدہ سچ جان لیتے ہیں تو نہ صرف اپنی سوچ کو بدل سکتے ہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کا رخ بھی متعین کر سکتے ہیں۔ آئیں انسانی ذہن کی 15 چونکا دینے والی اور دلچسپ سائنسی حقیقتوں کو دریافت کرتے ہیں جو آپ کی سوچ کو جھنجھوڑ دیں گی اور آپ کو خود کی گہرائیوں تک جھانکنے پر مجبور کر دیں گی۔ نمبر 1، دماغ خود کو درد نہیں محسوس کرتا۔ یہ جان کر آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا دماغ جو پورے جسم کے درد کو محسوس کرنے اور اس پر رد عمل دینے کا مرکز ہے، خود کسی درد کو محسوس نہیں کر سکتا۔ جی ہاں، انسانی دماغ میں درد محسوس کرنے والے ریسیپٹرز موجود ہی نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ دماغ کی سرجری مریض کی ہوش کی حالت میں بھی کی جا سکتی ہے اور وہ درد سے بے خبر رہتا ہے۔ سائنس کی دنیا میں اسے ایک حیران کن مگر ثابت شدہ حقیقت کے طور پر جانا جاتا ہے۔ جب نیورو سرجنز دماغی آپریشن کے دوران مریض سے گفتگو کرتے ہیں تو اس کا مقصد صرف ہوش کا جائزہ لینا نہیں ہوتا بلکہ وہ دماغ کے مخصوص حصے کے رد عمل کو براہ راست جانچ رہے ہوتے ہیں، اور اس دوران مریض کسی تکلیف کی شکایت نہیں کرتا۔ یہ حقیقت نہ صرف سائنسی طور پر دلچسپ ہے بلکہ ایک گہرا پیغام بھی رکھتی ہے۔ کبھی کبھار ہمارے سب سے بڑے درد ہماری سوچ کی پیداوار ہوتے ہیں، حقیقت میں نہیں۔ اس لیے جب زندگی کا کوئی پہلو تکلیف دہ لگے تو یہ سوچنا بھی ضروری ہے کہ یہ درد واقعی ہے یا ہمارے ذہن کا ایک ایڈٹ شدہ احساس۔ نمبر 2، روزانہ 90% خیالات وہی ہوتے ہیں جو کل تھے۔ انسانی ذہن روزانہ اندازاً 60,000 سے زائد خیالات پیدا کرتا ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے 90% خیالات وہی پرانے خیالات ہوتے ہیں جو ہم کل بھی سوچ چکے ہوتے ہیں۔ گویا ہم روزانہ اپنی زندگی کی وہی پرانی فلم دہراتے ہیں، بس تھوڑا سا منظرنامہ بدل جاتا ہے۔ یہ سائنسی حقیقت ہمیں ذہن کی روانی اور عادت کی طاقت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ہمارا دماغ وہی سوچنے میں آرام محسوس کرتا ہے جس کا وہ عادی ہے۔ یہ نیورل پاتھ ویز کا کمال ہے۔ ایک بار جو خیال مضبوطی سے جڑ جائے وہ بار بار دہراتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی بدلے تو آپ کو اپنے خیالات بدلنے ہوں گے۔ نئی سوچیں، نئے زاویے اور نئے سوالات ذہن کو پرانی پٹری سے ہٹا کر ترقی کی نئی راہ دکھا سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ روز وہی سوچتے ہیں تو آپ کل بھی وہی کریں گے اور یہی دہرانا زندگی کو جمود میں ڈال دیتا ہے۔ نمبر 3، انسان سب سے زیادہ جھوٹ خود سے بولتا ہے۔ یہ بات حیرت انگیز لگ سکتی ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم دن میں جتنے بھی جھوٹ بولتے ہیں ان میں سے اکثر خود سے کہے جاتے ہیں۔ میں ٹھیک ہوں، اب کی بار پکا وعدہ، کل سے نیا آغاز۔ یہ سب دراصل وہ فکریں ہیں جو ہم اپنی تسلی کے لیے دہراتے ہیں، چاہے دل میں ہم جانتے ہوں کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ نفسیات کے مطابق یہ خود فریبی دراصل ایک دفاعی نظام ہے جو ہمیں وقتی طور پر تکلیف دہ سچائی سے بچاتا ہے۔ ہمارا دماغ حقیقت کا سامنا کرنے سے گریز کرتا ہے، خاص طور پر جب وہ حقیقت ہماری خودی یا انا کو چیلنج کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لاشعوری طور پر ایسے بیانیے گڑھ لیتے ہیں جو ہمیں پرسکون رکھ سکے، مگر جب ہم مسلسل خود سے جھوٹ بولتے رہیں تو یہ عادت بن جاتی ہے، اور عادت سوچ کو محدود کر دیتی ہے، ترقی کا راستہ روکتی ہے۔ زندگی میں اصل تبدیلی تب آتی ہے جب انسان خود سے سچ بولنا شروع کرتا ہے۔ اپنے خوف، اپنی کمزوریوں اور سستی کو مان لینا پہلا قدم ہے بہتر زندگی کی طرف، کیونکہ سچائی تسلیم کرنے والا شخص
खुद को बदलने की ताकत भी रखता है। नंबर 4, किसी का नाम बार बार भूल जाना अक्सर जज्बाती बेरब्ती की अलामत होता है। अक्सर हम शर्मिंदगी के साथ कहते हैं, यार नाम जबान पर है बस याद नहीं आ रहा, लेकिन माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ये महज हाफजे की कमजोरी नहीं बल्कि लाशौरी तरजीह का इजहार हो सकता है। दिमाग जिस चीज या शख्स को जज्बाती तौर पर अहम ना समझे वो उसे याद रखने की कोशिश ही नहीं करता। न्यूरो साइंस हमें बताती है कि याददाश्त सिर्फ अल्फाज का जखीरा नहीं बल्कि जज्बात से जुड़ी हुई एक फाल एक्टिव प्रोसेसिंग है। अगर किसी से हमारा जज्बाती रब्त मजबूत ना हो या हम लाशौरी तौर पर उसे गैर मुतल्लका समझते हो तो दिमाग उससे मुतल्लक मालूमात मसलन नाम को खुद ब खुद खारिज कर देता है। ये बात हमें यह सीखने में मदद देती है कि हम किस किस्म के लोगों या बातों को अहमियत दे रहे हैं और किन को गैर अहम जानकर नजरअंदाज कर रहे हैं, चाहे वो हमें एहसास हो या ना हो। अगर हम वाकई ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ ताल्लुकात नहीं, उनसे जुड़े जज्बाती रब्त पर भी काम करना होगा, क्योंकि जो चीज दिल से जुड़ जाए उसे दिमाग कभी नहीं भूलता। नंबर 5, इंसान की याददाश्त झूठी हो सकती है। हम में से अक्सर अपनी याददाश्त पर भरोसा करते हैं। हम जो देखते, सुनते या महसूस करते हैं उसे हकीकत मान लेते हैं, लेकिन दिमाग की फितरत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। साइंसी तहकीक से साबित हुआ है कि इंसानी याददाश्त रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि रिक्रिएशन का अमल है। दिमाग हर याददाश्त को महफूज करने की बजाय उसका एक खाका या तस्वर बनाता है। जब हम किसी वाक़े को याद करते हैं तो दरअसल हम उसे दोबारा तख्लीक करते हैं अपने मौजूदा जज्बात, तजर्बात और तासरात की मदद से। इसका मतलब यह है कि वक्त के साथ साथ वो याददाश्त असल वाक़े से बदल सकती है, उसमें गलतियां आ सकती हैं या कभी तो वो वाक़या बिल्कुल ही तब्दील हो जाता है। माहिरीन नफ्सियात ने ऐसे कई तजर्बात किए जिनमें रजाकारों को झूठी यादें दिलवाई गईं और वो उन पर मुकम्मल यकीन भी कर बैठे। ये जानना हमें एक बड़ी बसीरत देता है कि माजी को लेकर खुद को कोसना या पछतावे में जीना शायद इतना वजनी ना हो जितना हम समझते हैं, क्योंकि जो हमें याद है वो हमेशा हकीकत नहीं होती। तो बेहतर है कि हम हाल पर तवज्जो दें, क्योंकि हाल वो वाहिद लम्हा है जिसे हम असल में शक्ल दे सकते हैं। नंबर 6, इंसानी जहन मना के अल्फाज पर अमल नहीं करता। आपसे अगर कहा जाए गुलाबी हाथी का तस्वर मत करें तो आपका दिमाग फौरन गुलाबी हाथी की तस्वीर बनाएगा। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग नफी यानी मना को सीधा नहीं समझता, बल्कि वो पहले तस्वर बनाता है, फिर कोशिश करता है कि उस तस्वर को ना सोचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह सादा सा मज़र न्यूरो साइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कई बार तजर्बात से साबित हो चुका है। दिमाग की बुनियादी साख्त यादाश्त और तस्वीरी तखय्युल पर मबनी है और वो हदायत को मुस्बत शक्ल में ज्यादा बेहतर अंदाज में कबूल करता है। इसका मतलब है कि अगर आप खुद से कहें मैं परेशान नहीं हूंगा तो दिमाग पहले परेशानी की तस्वीर जहन में बनाता है। नतीजतन वही जज्बात पैदा होते हैं जिनसे बचना चाहते हैं। इसके बरक्स अगर आप कहें मैं पुरसकून हूं तो दिमाग को एक मुस्बत और काबिल अमल तस्वीर मिलती है। ये असूल हमारी तरबियत, गुफ्तगू, हत्ता के बच्चों से बात करने के अंदाज को भी बदल सकता है। गिरने का मत सोचो की बजाय सीधे खड़े रहो ज्यादा मौसर होता है। सोचने का अंदाज बदले, क्योंकि दिमाग सिर्फ वही समझता है जो आप इसे तस्वीर में देते हैं। नंबर 7, मौसीकी आपके जज्बात की प्रोग्रामर है। मौसीकी एक जबान है जो अल्फाज के बगैर बोलती है और सीधी दिल में उतरती है। माहिरीन असाबियात न्यूरो साइंटिस्ट के मुताबिक मौसीकी ना सिर्फ हमारे जज्बात को मुतासर करती है बल्कि बसा औकात हमारे मूड को प्रोग्राम भी कर देती है। ये हैरत अंगेज हकीकत है कि अगर आप मुकम्मल तौर पर खुश हों और अचानक उदास धुन सुन लें तो आपके अंदर तन्हाई, उदासी या माजी की यादें जाग सकती हैं। इसकी वजह दिमाग का एमिगडाला नामी वो हिस्सा है जो जज्बात को पहचानता और उन पर रद्द-ए-अमल देता है। जब उदास मौसीकी सुनी जाती है तो अमिगडाला एक्टिव हो जाता है और वही केमिकल खारिज करता है जो हकीकी गम के वक्त खारिज होता है। नतीजतन इंसान खुद को सचमुच उदास या तन्हा महसूस करने लगता है।
चाहे वो लम्हा भर पहले बिल्कुल नॉर्मल या खुश था। यही असूल कामयाब फिल्म, म्यूजिक या जज्बाती मनाजर में इस्तेमाल होने वाले बैकग्राउंड म्यूजिक में अपनाया जाता है। इसी वजह से हम खुद को अचानक किसी कहानी में डूबा हुआ पाते हैं, सिर्फ एक मखसूस धुन की बदौलत। यह हमें सिखाता है कि जो हम सुनते हैं वो हम बन सकते हैं, इसलिए अपनी जिंदगी के साउंड ट्रैक को एहतियात से चुनें। नंबर 8, तन्हाई का दर्द दिमाग के लिए जिस्मानी जख्म की तरह है। हम में से हर किसी ने जिंदगी में कभी न कभी तन्हाई, नजरअंदाजी या समाजी मुस्तरदगी का सामना किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिमाग ऐसे तजर्बात का सिर्फ एहसास नहीं करता, बल्कि उन्हें बिल्कुल वैसे ही महसूस करता है जैसे जिस्मानी चोट। जी हाँ, न्यूरो साइंस ने साबित किया है कि जब इंसान को नजरअंदाज किया जाता है या वो खुद को गैर अहम महसूस करता है, तो इसके दिमाग का वही हिस्सा एक्टिव होता है जो जिस्मानी दर्द के वक्त होता है। यही वजह है कि जब कोई करीबी दोस्त आपकी कॉल का जवाब ना दे या कोई महफिल में आपको नजरअंदाज करे तो दिल बोझल हो जाता है। ये सिर्फ जज्बाती दुख नहीं बल्कि हकीकी ज़हनी तकलीफ है, जैसे जिस्म पर जख्म आया हो। ये सच इंसान की बुनियादी समाजी फितरत को वाजे करता है। हम सब ताल्लुक, तवज्जो और कबूलियत चाहते हैं क्योंकि हमारा दिमाग ही इसका तकाजा करता है। यही वो लम्हा होता है जब किसी को एक सादा तुम अहम हो कहना इसके ज़हनी दर्द को कम कर सकता है, जैसे मरहम जख्म पर। तो अगली बार जब कोई तन्हा दिखाई दे, याद रखें उनका दर्द नजरअंदाजी नहीं हकीकी हो सकता है। नंबर 9, तारीफ दिमाग को फौल, तनकीद उसे सुस्त कर देती है। न्यूरो साइंस हमें बताती है कि जब इंसान को सराहा जाए तो उसके दिमाग में डोपामिन नामी केमिकल खारिज होता है। ये वही न्यूरो ट्रांसमीटर है जो खुशी, तहरीक और तवज्जो को बढ़ाता है। यही केमिकल दिमाग को सीखने, याद रखने और बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर आमादा करता है। जब किसी की तारीफ की जाती है तो वो सिर्फ खुश नहीं होता, बल्कि उसका दिमाग हकीकतन ज्यादा मौसर तरीके से काम करता है। दूसरी तरफ तनकीद खास तौर पर मनफी अंदाज में दिमाग में स्ट्रेस हार्मोन्स को मुतहरिक करती है, जो सीखने और तख्लीकी सोच को महदूद कर देते हैं। ये वजह है कि सख्त उसातिज़ा या बास के नीचे अक्सर लोग दब जाते हैं, जबकि हौसला अफजाई करने वाले लीडर जहनों को चमकने का मौका देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई बेहतर करे, चाहे वो तालिब इल्म हो, मुलाजिम हो या आप खुद, तो तनकीद की बजाय तारीफ से आगाज करें। मुस्बत रवैया सिर्फ दिल को नहीं जीतता, दिमाग को भी चालू करता है। याद रखें, सराहा गया इंसान सिर्फ बेहतर सीखता नहीं, वो खुद को बेहतर महसूस भी करता है। नंबर 10, तन्हाई में दिमाग सबसे ज्यादा सच बोलता है। जब इंसान तन्हा होता है तो इसे दूसरों को खुश करने या मुतासर करने की जरूरत नहीं रहती। वो समाजी नकाब, बनावट और तवक्कुआत से आजाद हो जाता है। यही लम्हे होते हैं जब इंसान खुद से वो सवालात करता है जो मजमे में दब जाते हैं। क्या मैं वाकई खुश हूँ? क्या मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे दिल की आवाज है? ऐसी खुद कलामी में इंसान का दिमाग ज्यादा साफ, शफाफ और गैर जानबदार अंदाज में सोचने लगता है। तहकीकात बताती हैं कि जब हम तन्हाई में होते हैं तो हमारा डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, दिमाग का वो हिस्सा जो खुद शनासी से जुड़ा हुआ है, ज्यादा एक्टिव होता है। यही निजाम हमें अपने माजी, हाल और मुमकिन मुस्तकबल के बारे में सोचने पर मजबूर करता है और अक्सर सच का सामना करवाता है। अकेलापन बज़ाहिर सन्नाटा होता है, मगर जहन के अंदर गुफ्तगू बहुत बुलंद होती है और ये गुफ्तगू अक्सर बाकी सबसे ज्यादा सच्ची होती है। इसीलिए खुद को जानने का पहला कदम तन्हाई को कबूल करना है, ना कि इससे घबराना। नंबर 11, खौफ में फैसला साजी आर्जी तौर पर बंद हो जाती है। खतरा, खौफ या हंगामी सूरत हाल इंसान के दिमाग में एक खास किस्म की जाग पैदा करती है। जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है, दिमाग की एक कदीम तरीन साख्त एमिगडाला एक्टिव हो जाती है। यह हिस्सा फौरी तौर पर हमें खबरदार करता है और जिस्म को हालत दफा में ले आता है। इस लम्हे हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा है पुरानी जिबिलत जो चाहती है कि हम फौरी भागें, लड़ें या छुप जाएं, जबकि दूसरा यानी सोचने वाला हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पीछे हट जाता है। यही वजह है कि हम किसी खतरनाक या जज्बाती लम्हे में दुरुस्त फैसला करने की सलाहियत खो बैठते हैं,
क्योंकि दिमाग का फोकस बचाव पर होता है, ना कि तज्जिए पर। लेकिन इसी हालत को अगर हम शौरी तौर पर समझ लें तो ये हमें बेहतर रद्द अमल की तरबियत भी दे सकती है। न्यूरो साइंस के मुताबिक अगर हम बार बार खुद को छोटे खतरात का सामना करने की तरबियत दें, जैसे आवाम में बोलना, नए तजर्बात करना या खौफ पर काबू पाना, तो हमारा दिमाग इन हालात में ज्यादा हाजिर और मुतवाज़न अंदाज में काम करना सीख लेता है। खौफ फितरी है, लेकिन इसे सीखना और इसे अपना तरबियती आला बनाना अक्लमंदी है। याद रखें, बहादुरी खौफ के बगैर नहीं बल्कि खौफ के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। नंबर 12, मसनूई मुस्कुराहट भी दिमाग को खुशी का धोखा दे सकती है। ये सुनने में अजीब लगता है लेकिन सच है। आपके चेहरे के तासुरात, खास तौर पर मुस्कुराहट, ना सिर्फ दूसरों पर असरअंदाज होते हैं बल्कि आपके अपने दिमाग पर भी। न्यूरो साइंस की तहकीक से मालूम हुआ है कि जब आप जबरदस्ती भी मुस्कुराते हैं तो दिमाग इसे खुशी का सिग्नल समझकर खुशी से मुतल्लिक केमिकल खारिज करता है, जैसे डोपामिन, एंड्रोफिन और सेरोटोनिन। ये अमल फेशियल फीडबैक हाइपोथेसिस कहलाता है, यानी चेहरे के तासरात दिमाग को फीडबैक देते हैं कि वो कैसा महसूस करे। इसीलिए अगर आप उदास भी हों और आईने में देखकर मसनूई मुस्कुराहट अपनाएं तो थोड़ी ही देर में दिमाग इसे असल खुशी समझना शुरू कर देता है। दिमाग जिस्म की हालत से मतलब निकालता है और जब वो देखता है कि चेहरा खुशी का इजहार कर रहा है तो वो भी इस कैफियत में ढलने लगता है। यही वजह है कि कामयाब लोग अक्सर पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज अपनाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जज्बात सिर्फ अंदर से नहीं आते बल्कि बाहर से भी पैदा किए जा सकते हैं। तो अगली बार जब आपका मूड खराब हो, थोड़ा सा मुस्कुराएं, आपका दिमाग आपके चेहरे की बात जरूर सुनेगा। नंबर 13, ताकतवर जिस्मानी अंदाज दिमाग में खुद इत्मादी बढ़ाता है। जब आप अकड़ कर बैठते हैं, कंधे सीधे रखते हैं और सीना तान कर चलते हैं, तो ये सिर्फ एक अंदाज नहीं बल्कि एक पैगाम होता है जो ना सिर्फ दुनिया को बल्कि आपके अपने दिमाग को भी। साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि जिस्मानी अंदाज, बॉडी पोस्चर और खुद इत्मादी के दरमियान बराह रास्त ताल्लुक होता है। इस अमल को पावर पोजिंग कहा जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक अगर कोई शख्स सिर्फ 2 मिनट के लिए भी ताकतवर अंदाज में खड़ा हो जाए, जैसे हाथ कमर पर रख कर सीना तानना, तो इसके जिस्म में टेस्टोस्टेरोन, एतमाद बढ़ाने वाला हार्मोन की सतह बढ़ जाती है और कोर्टिसोल, तनाव का हार्मोन, कम हो जाता है। इसका मतलब है आपका जिस्मानी अंदाज ना सिर्फ दूसरों को ताकत दिखाता है बल्कि आपके अंदर भी ताकत और खुद इत्मादी जगाता है। यानी अगर आप किसी इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या मुश्किल गुफ्तगू से पहले अपने जिस्मानी अंदाज पर तवज्जो दें तो आपका ज़हन खुद ब खुद बेहतर कारकर्दगी की तरफ माइल हो जाता है। जिस तरह डरे हुए लोग झुक कर चलते हैं, वैसे ही बाइत्माद लोग खुले और पुरएतमाद अंदाज में चलते और बैठते हैं। लिहाजा अगली बार जब आप किसी चैलेंज का सामना करें तो पहले अपने जिस्म को सीधा करें, बाकी काम आपका दिमाग खुद कर लेगा। नंबर 14, हसद दरअसल आपकी छुपी ख्वाहिशों का आईना है। हसद एक ऐसा जज्बा है जिसे हम अक्सर मनफी और शर्मिंदगी का बायस समझते हैं, मगर नफ्सियात हमें बताती है कि यह दरअसल हमारी खुदी की एक अहम अलामत भी हो सकता है। जब हम किसी और की कामयाबी, खुशी या किसी खास खूबी पर हसद महसूस करते हैं तो ये जज्बा हमें हमारी अपनी छुपी हुई ख्वाहिशात का आईना दिखा रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी दोस्त की शोहरत या इत्माद पर हसद करते हैं तो मुमकिन है आपके दिल में भी यही ख्वाहिश हो कि आपको सराहा जाए या आप खुद इत्मादी हासिल करें। न्यूरो साइंस और मुस्बत नफ्सियात के माहिरीन का कहना है कि हसद सिर्फ दूसरों की बरतरी पर गुस्से का इजहार नहीं बल्कि वो इंसानी ख्वाहिश का सुराग है। यह जानना कि हसद किन पहलुओं पर हो रहा है हमें खुद की बेहतरी की तरफ माइल कर सकता है। यह एहसास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अंदर क्या कमी है जिसे हम महसूस कर रहे हैं और इसे बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी कामयाबी पर जलन महसूस हो, इसे दबाने या शर्मिंदा होने की बजाय खुद से ये सवाल करें, क्या ये वो चीज है जिसकी मुझे भी तलब है? अगर हाँ, तो यही हसद आपकी तब्दीली का पहला इशारा हो सकता है। नंबर 15, 80% फैसले जज्बाती होते हैं, मंतकी नहीं।
हम में से बेशतर लोग ये समझते हैं कि हम अपने फैसले मुकम्मल अकली बुनियादों पर करते हैं, सोच समझकर, तज्जिया करके, मंतक से। लेकिन नफ्सियाती तहकीक बताती है कि हकीकत में इसके बिल्कुल बरक्स है। हमारे 80% से ज्यादा फैसले दरअसल जज्बात की बुनियाद पर होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दिमाग में मौजूद एमिगडाला नामी एक हिस्सा जो जज्बात को प्रोसेस करता है, फैसला साजी में कलीदी किरदार अदा करता है। जब भी हमें कोई अहम फैसला करना होता है, ये जज्बाती मरकज फौरी तौर पर मुतहरिक हो जाता है, चाहे हम इसका शौरी इदराक करें या ना करें। मिसाल के तौर पर जब आप कोई महंगी चीज खरीदने का सोचते हैं तो मंतक कहती है बजट चेक करो, जरूरत देखो, लेकिन दिल कहता है खुद को रिवार्ड दो, तुम इसके लायक हो। नतीजा आप अक्सर दिल की सुनते हैं। इस रुझान को इमोशनल बायस भी कहा जाता है, यानी जज्बात हमारे फैसलों पर झुकाव पैदा करते हैं। इस हकीकत को जानकर हम अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं। अगर हम अपने जज्बात को पहचान ले और उन्हें मनफी रवैयों की तरफ बहने की बजाय मुस्बत समत में डालें तो हम बेहतर फैसले कर सकते हैं, वो जो दिल को भी सुकून दें और दिमाग को भी मुतमिन करें। आप वीडियो के इस हिस्से तक पहुंच गए हैं तो आप जरूर मजीद जानना चाहते होंगे, तो आपके लिए एक बोनस पॉइंट है। नंबर 16, दिमाग कभी मुकम्मल खामोश नहीं होता, हत्ता कि नींद में भी। जदीद न्यूरो साइंस के मुताबिक इंसान का दिमाग हर वक्त मुतहरिक रहता है, हत्ता कि उस वक्त भी जब आप सो रहे होते हैं। दिमाग की एक हालत जिसे DMN डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहा जाता है, उस वक्त एक्टिव होती है जब हम बज़ाहिर कुछ नहीं कर रहे होते, यानी कोई टास्क अंजाम नहीं दे रहे। यही हालत वो वक्त है जब हमारा दिमाग खुद कलामी करता है, ख्याली मकालमे, पछतावे, मंसूबे और यादें ताज़ा करता है। नींद के दौरान भी दिमाग का यह हिस्सा ख्वाबों के जरिए हमारी शख्सियत, एहसासात और अंदरूनी कश्मकश को प्रोसेस कर रहा होता है। यही वजह है कि कभी कभार ख्वाब हमें ऐसे इंकशाफात दे जाते हैं जो जागती आंखों से मुमकिन ना थे। ये इस बात का सबूत है कि इंसान का जहन ना सिर्फ शऊर में बल्कि लाशऊर में भी मुसलसल मसरूफ़े अमल रहता है। आप भले थक जाएं मगर आपका जहन कभी रुकता नहीं। ये सच हमें ये सिखाता है कि खामोशी में भी शऊर की गूंज होती है, बस सुनने वाला जहन होना चाहिए। इंसानी जहन एक पेचीदा मगर हैरत अंगेज तौर पर काबिल फहम कायनात है। जब हम इसके नफ्सियाती राजों को समझने लगते हैं तो ना सिर्फ दूसरों को बेहतर तरीके से जानने लगते हैं बल्कि खुद अपनी जात का शऊर भी गहरा होता जाता है। ये 15 बल्कि 16 नफ्सियाती सच्चाइयां सिर्फ दिलचस्प हकायक नहीं बल्कि वो आईने हैं जिनमें हम अपनी असल को देख सकते हैं, अपनी आदतों, कमजोरियों, ख्वाहिशों और सलाहियतों को। कामयाबी एक मुकम्मल प्रोसेस है और जानना भी उसका हिस्सा है, इसलिए मजीद जानने की जुस्तजू करते रहें। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।